Hello everybody, hello and welcome to this lecture number 3rd. I welcome the students who are following the differential calculus course number 1st. So far we have delivered 2 lectures on this. One was the introduction, and first and second we did something about the successive differentiation, and in lecture 3rd I have decided to just find the and how to find out nth derivative of some standard functions. Let me take the first function, find nth derivative. You want to find out, say, find nth derivative of function ax plus b raised to power m, say. And this is also one of the standard functions. You know, standard functions, this function, you have x plus b raised to power m or n. You have this x raised to power m. You have the log of ax plus b. You have 1 upon ax plus b, sine, cos, and other functions. You have to actually, when you go for Lebanese theorem, you have to apply the Lebanese theorem in evaluation of the nth derivative of the product of 2 functions, and in at least out of 2 functions you must know the nth derivative of 1 function. So the cases that you will come across there while applying the Lebanese theorem, I will discuss with you in this lecture how to find out the nth derivative. You see, I have taken this function. I will denote this function, let y be equal to ax plus b raised to power m. I will go for the first derivative. Differentiate with respect to x. You have y1, which is same as dy by dx, you say. Now how you differentiate this? Take this power down, this is m down, then you have ax plus b raised to power m minus 1, then internal derivative of this ax plus b, which is a. Okay, then you go for the second derivative. You will write differentiate again. You will have y2, which is also d2y dx square. This will be your m times m minus 1, then ax plus b, m minus 1 down, then this power will again get decreased by 1 as you did in previous classes, m minus 2. Internal derivative of ax plus b, it is a. B is additive constant, it disappears in the differentiation. As you know, derivative of ax plus b is a, so it will become now a square. Suppose you go for y3, which is your d3y, third derivative, dx cube, that comes out to be m minus 1, m minus 2, then ax plus b raised power m minus 3 a cube. You see how we develop some sort of symmetry when we find out the nth derivative. It is very important, very important. You see how we go. You have here third derivative. You have 3 factors get involved, m minus 1, m minus 2, but this last factor you don't have here, m minus 3, when our derivative is third. How I do it? I will rewrite this factor as, this is m, then m minus 1, then I will write m minus 3 plus 1. What is m minus 3 plus 1? Do you follow me? M minus 3 plus 1, it is m minus 3 plus 1 is your m minus 2. Why I involved here 3? Because of this derivative third. Now here it is okay, I will not disturb this. I will write it ax plus b raised to power m minus 3, because derivative is 3 and your m is getting decreased by 3, and power of a is also 3. The derivative number, it is derivative number. Now when you go for y4, your derivative number is 4. I will try to introduce this 4 on the right side. First I will differentiate this for y4. This is m,
this is m minus 1 product as it is, m minus 2, this will come down as per the differentiation, this is m minus 3, this is ax plus b raised to power m minus 4, it is a raised power 4. What is your derivative number? It is 4. Here it is 4, okay, you will not disturb it. It is here m minus 4, m is getting in other words decreasing by 4, it is okay. Here you have m minus 3, but my derivative is 4. I will write the last factor here, m minus 1, then m minus 2, then I will write m minus 4 plus 1. It is your ax plus b raised power m minus 4 a4, and you have got something what is called this as symmetry. By symmetry you can write down the another derivative now. Now when you go for y5, what is this? It is m times m minus 1, m minus 2, m minus 3, then m minus 4. It is your ax plus b raised power m minus 5, a raised power 5, internal derivative of ax plus b. What is your derivative number? Fifth derivative. So you can write this, it is m times m minus 1, m minus 2, m minus 3, then m minus 5 plus 1. It is ax plus b raised power m minus 5, a raised power 5. Now you are in a position to write down, it is sixth derivative. You can write here, it is sixth derivative. What is y6 accordingly? You can write it is m times m minus 1, m minus 2, m minus 3, then m minus 4, you have m minus 5 also, then you have m minus 6 plus 1, then it is ax plus b raised to power m minus 6, a raised power 6. So proceeding this way, proceeding up to nth derivative, you have now a symmetry. You can write your yn is what? Another derivative, it is m, okay, m minus 1, m minus 2, m minus 3. What will be the last factor? You see, what was the last factor here? M minus 6. What was the 6? Derivative number. What was the last factor here? It is m minus 5. What was your derivative number? It was 5. So what is here derivative number? It is nth derivative. So you can write it is your m minus n plus 1. It is ax plus b raised to power m minus n, a raised to power n. Nth derivative. This is how we find out the nth derivative of the function. It is a standard result that we did. Now we have cases here. We have for m we don't know what is m. We consider two cases here. You see on this result, I will name this result here, say it is number 1. I will name it's a standard result of 1. Then we have y is equal to ax plus b. Now I will consider two cases. Case first, I will take case first if my m is not an integer. If m is not positive integer, if it is not positive integer, but our derivative number is a positive integer, because you find out derivative y1, y2, y3, y4, so on, yn is a number, it is a positive integer, our derivative number is positive. If m is not positive integer, then result first, then result number 1, result first, that is this result, that is y of n is equal to m minus 1, m minus 2, m minus 3, so on. Last factor m minus n plus 1, ax plus b raised power m minus n, a raised power n, holds for all positive integral values of n, because our n, this n
is a positive integer because we start from y1, y2, y3, y4, y6, y7, y8, so on to yn. It is positive. If our m is not here positive integer, then you have to, this result will hold for all positive integral values of n. Now when we have case number second, case second case second is this: if m happens to be, if m is a positive integer, if your m is positive integer, here n is also positive integer, naturally a stage will come when here you will have this ax plus b raised to power your positive integer, whatever positive integer is, and it is getting decreased by the positive integer also. Suppose your m is 5, positive integer, so at the fifth derivative you will have 5 minus 5. Suppose your m is 7, m is 7, your n is also here what, 7. So अगर आपके पास m है यहाँ पे 7, पावर इसका है पॉजिटिव इंटीजर 7, जब आप पहुँचेंगे सेवन्थ डेरिवेटिव पे आप लिखेंगे ax प्लस बी रेज टू पावर यूर 7 माइनस 7, सेवन्थ डेरिवेटिव. सो अगर हमारे पास यहाँ पे m पॉजिटिव इंटीजर है, सो दिस मीन्स जब मैं यहाँ पे पहुँचूँगा ym पे, ym क्या आएगा उस वक्त पे, because m is a positive integer, our derivative number is also a positive integer. So in this case my ym will be, it is m minus 1, m minus 2, m minus 3, लास्ट पे क्या आएगा ये, शाबाश, it is m minus m plus 1, this is ax plus b raised to power m minus m a raised to power m. मैं दोबारा बताता हूँ यहाँ पे आपको, आप यहाँ पे ये डेरिवेटिव्स जो निकालते हैं y1, y2, y3, 4, ये स्टैंड करता है डेरिवेटिव नंबर पॉजिटिव इंटीजर. अगर आपका m भी पावर भी है यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर, एक स्टेज ज़रूर आएगी जब आपका डेरिवेटिव नंबर कोइंसाइड हो जाएगा m के साथ, जो इसका m पॉजिटिव इंटीजर है, उस वक्त क्या आएगा, n m के बराबर, m है डेरिवेटिव, यहाँ तो ये आएगा m माइनस m, ये हम कह रहे हैं अगर m पॉजिटिव इंटीजर है. सो उस केस में ये क्या जाएगा, ym. सो m एट डेरिवेटिव जो है, अगर इसका पावर है पॉजिटिव इंटीजर m, दिस इज m माइनस 1, m माइनस 2, m माइनस 3, एंड दिस इज नाउ योर 1, एंड दिस इज ax प्लस b रेज पावर 0 a रेज टू पावर m. अब व्हाट इज दिस, इट इज गेटिंग डिक्रीजिंग बाय सक्सेसिवली अप टू 1 पे पहुंचता है, m माइनस 1, m माइनस 2, m माइनस 3, दैट इज सो ऑन, लास्ट पे आएगा 2, देन 1. इट इज़ योर बाय डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन, दिस इज योर ym इज m फैक्टोरियल, दिस विल बी m फैक्टोरियल, दिस इज योर 1 a रेज टू पावर m. वेरी इंपॉर्टेंट सेटअप. अगर हमारे पास m है यहाँ पे केस सेकंड में, इफ़ m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, सो किसी भी केस पे हमारा जो डेरिवेटिव है वो कोइंसाइड हो जाएगा पॉजिटिव नंबर के साथ. हम जब n को देते हैं m, अगर m मेरे पास पावर है 5, तो फिफ्थ डेरिवेटिव के वक्त मुझे ax प्लस b जाएगा 5 माइनस 5. अगर m पावर मेरा है 10, तो 10th डेरिवेटिव के हिसाब से, इस हिसाब से मैं जाऊंगा 10 माइनस 10, यानी कि ये वैनिश होता है, ये 1 बनता है, उस वक्त ये फैक्टोरियल नोटेशन में जाएगा. सो देयरफॉर इफ m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, ये आप याद रखेंगे, वरना ये हम कहेंगे ये जनरल एन डेरिवेटिव है ax प्लस b रेज पावर m, व्हेन m इज़ नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, इट कैन बी एनीथिंग. सो ये है इसका जनरल. वेल, तो अब आप आइए यहाँ पे, ये हम रिज़ल्ट याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है. 10 फॉर y इज इक्वल टू ax प्लस b रेज पावर m व्हेन m is a positive integer. What is our m at derivative in that case? It is m factorial a raised to power m. Remember this. अगर हम आगे जाएंगे इसको, this implies what is m plus 1? It is a constant now, it is 0. What is m plus 2? It is also 0. So on to yn is 0 when your n is greater than m. जब आप अपना n लेंगे, जब आप इसके आगे जाएंगे, it vanishes. The net derivative yn is 0 when n is greater than m. So we shall also note
Thus, number one, observation for y is equal to ax plus b raised power m. If m is a positive integer, then y raised power n is 0 when n we take greater than m. जब हम mth डेरिवेटिव के आगे जाएंगे, m plus 1, m plus 2 वो बनेगा 0. So we will say when this yn is 0, m is a positive integer, when yn is 0, n derivative 0, when our n is exceeds m, ये m से बढ़ा जाता है. ठीक है. दूसरी ऑब्जर्वेशन हमने ये भी देखी, the nth derivative of polynomial functions vanishes when its power is less than, power means exponent, positive exponent, is less than what? Less than the derivative. This is less than n. The nth derivative of polynomial function vanishes when its power means m. M is here, m is less than, n is greater than, m is less than n. These are two deductions. Now very important, this standard result. Let us see. If you have second standard result, it is very simple. You have result second, I will touch now. Standard result second. Suppose you have y is equal to x raised to power m. How we find out? हमारे पास जो है y is equal to ax plus b raised to power m. यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे. Put a is equal to 1, b is equal to 0 in this result. इन रिजल्ट नंबर 1, तो हमें क्या मिलेगा? हमारे पास है y is equal to ax plus b raised power m, that will be now this is x raised power m. What is according to that? Look there. So yn will be here accordingly. It is m minus 1, m minus 2, here m minus n plus 1. This will be x raised to power, because your a is 1, b is 0, x raised to power m minus n, and a is your 1. This is x raised to power m minus. For m positive integer, as we did in previous problem, when m is a positive integer, what is your ym? This will be m minus 1, m minus 2, this is m, this will be 1 only, this is x raised power m minus m. So ym is simply m factorial, because this is 1. Thus we will remember, thus for y is equal to x raised power m, what is our ym? Ym is simply m factorial when m is a positive integer. And you here also know yn will be 0 when you write our n is greater than m. जब हम m से आगे जाएंगे, m plus 1, m plus 2, m plus 3, all the derivatives will vanish. जब हम derivative exceed करेंगे, m से आगे जाएंगे, n is greater than m. This is how we do this. Or otherwise you can do this directly also. This has a very important standard result for the nth. How do we find out the nth derivative for this? We will do some more problems for finding out the nth derivative of other functions. Let me take one more result. Suppose we take this one. Find second result. It will be now third. Find nth
डेरिवेटिव ऑफ 1/ax प्लस बी, इट इज़ ऑल्सो ए स्टैंडर्ड रिजल्ट। एक फ्रैक्शन का आपको निकालना है एनथ डेरिवेटिव, मतलब डिनोमिनेटर में हो सकता है 3x प्लस 4 और समटाइम्स 4 माइनस 6x। जब हम अप्लाई करेंगे एनथ डेरिवेटिव, आपको बाद में ही फॉर्मली याद रखना है। वेरी सिंपल हाउ वी गो, you see how we go for finding out nth derivative. I will write here, let us take y is equal to 1/ax plus b। ठीक है, ये मैं लेता हूँ न्यूमरेटर में। I will write it, ये है ax plus b raised power -1। Let me differentiate। What is my y1? -1 is coming down, then ax plus b, it will go decrease by -2. This is internal derivative of ax plus b, that is a. I will go now second derivative y2. It is understood we are differentiating again with respect to x, it is y2. This -1 -2 will down, ax plus b -3 into internal derivative a square। हमारा डेरिवेटिव नंबर है यहाँ पे 2। देखो इस 2 को कैसे हम इन्वॉल्व करेंगे आगे। मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं इस 2 को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, यहाँ पे मुझे देखिए माइनस कितने बार आता है प्रोडक्ट में, माइनस आता है 2 बार। डेरिवेटिव क्या यहाँ पे है 2। आई विल राइट इट -1 रेज टू पावर 2। एक्चुअली इट इज़ माइनस पॉजिटिव, बट आई विल राइट इट क्योंकि थर्ड डेरिवेटिव में मुझे और माइनस आएगा। अब देखिए ये है 1 into 2, 1 into 2 is 2 factorial। I will write it 2 factorial। Then ax plus b, डेरिवेटिव नंबर मेरे पास क्या है 2, लेकिन पावर क्या आया यहाँ पे -3। मुझे 2 की भी ज़रूरत है। I will write it -2 -1। ओके, यहाँ पे a का पावर ठीक है, डेरिवेटिव नंबर भी मेरे पास 2 है। I will differentiate again। You see y3, थर्ड डेरिवेटिव के लिए मैं जाता हूँ। हाँ, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा -3 डाउन, इट इज़ -1 -2 -3 डाउन, इट इज़ ax प्लस b रेज पावर -4। इंटरनल डेरिवेटिव ax प्लस b का इट इज़ a³। याद रखिए हम थर्ड डेरिवेटिव के लिए जा रहे हैं। माइनस प्रोडक्ट में कितने बार आया 3 बार, ये मैं लिखूँगा -1 रेज पावर 3। अब प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स, consecutive, इट इज़ 1 into 2 into 3, डेरिवेटिव भी है 3, यू विल सिंपली राइट इट इज़ 3 फैक्टोरियल। ओके, यहाँ पे हमारे पास है ax प्लस b रेज पावर -4, जब भी मेरी डेरिवेटिव है 3, थर्ड डेरिवेटिव। आई विल राइट इट इज़ ax प्लस b रेज पावर -3 -1। a का पावर तो है ही क्यूब और डेरिवेटिव भी थर्ड है। आई विल राइट इट a³। लेट अस गो फॉर फोर्थ से नेक्स्ट डेरिवेटिव y4, नेक्स्ट डेरिवेटिव। यहाँ -4 नीचे आ रहा है, इट इज़ -1 -2 -3 -4। दिस इज़ योर ax प्लस b रेज पावर -5 एंड दिस इज इंटरनल डेरिवेटिव x प्लस b का क्या आएगा, इट इज़ a, दैट a बनेगा a4। अब देखिए माइनस कितने बार, 1 2 3 4 बार आया माइनस प्रोडक्ट में। यहाँ पे 4 डेरिवेटिव है, सो इट इज़ -1 रेज पावर 4। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ consecutive इंटीजर्स है 1 into 2 into 3 into 4, so it is 4 factorial। then this is ax plus b raised power -4 -1 -5 है ना, this is a raised to power 4। symmetry is developed। you can directly write now without going this। you will write accordingly my y5, what will be that? I will write in symmetry हिसाब से मुझे आएगा ये -1 raised power 5 फैक्टोरियल। ये आएगा मुझे ax प्लस b, फिफ्थ डेरिवेटिव -5 -1 a raised to power 5। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू दिस, तो मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड रिजल्ट इसके लिए डेवलप किया, वो है ये प्रोसीडिंग अप टू व्हाट, अप टू nth डेरिवेटिव। जब हम nth डेरिवेटिव पे आएंगे, क्या होगा nth डेरिवेटिव के वक्त? nth डेरिवेटिव के वक्त मुझे आएगा अब इसका nth डेरिवेटिव, इसका nth डेरिवेटिव, ये याद रखें, इसका nth डेरिवेटिव है yn इज इक्वल टू -1 रेज पावर n फैक्टोरियल, डेरिवेटिव n का पावर
-1 का पावर n फैक्टोरियल, देन ax प्लस b रेज पावर -n-1 इंटू a रेज पावर n। ये हम शॉर्ट में लिखेंगे, शॉर्ट में इसको याद रखेंगे हमेशा के लिए, याद रखें इट इज़ -1 रेज पावर n फैक्टोरियल बाय, ये नीचे आएगा ax प्लस b रेज पावर n+1 इंटू a रेज पावर n। ये है आपका nth डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ओके, दिस इज nth डेरिवेटिव ऑफ, याद रखना है आपको, nth डेरिवेटिव ऑफ 1/ax प्लस b इज व्हाट, -1 रेज पावर n फैक्टोरियल a रेज पावर n ax प्लस b रेज पावर n+1 डिवीजन बाय, डिनोमिनेटर में आता है, याद रखिए डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में क्या आया -n-1, तो डिनोमिनेटर में क्या आया ax प्लस b रेज पावर n+1। दिस इज nth डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, दिस इसका nth डेरिवेटिव, ये याद रखना है आपको, लेबनीज थ्योरम में काम करना है। हम जा रहे हैं, हमारा जो कारवां है आगे, वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज लेबनीज थ्योरम, हाउ वी फाइंड आउट द nth डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। आइए अब हम दूसरे प्रॉब्लम की तरफ स्टैंडर्ड रिजल्ट लेंगे, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको काम आएगा। अभी तक क्या हमने किया है, nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b रेज पावर m, x रेज पावर m, और किया 1/ax प्लस b। ओके, अब हम जा रहे हैं फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड, ये थर्ड, ये रखो आप, फोर्थ क्या नंबर होगा, फोर्थ नंबर आप खुद याद रखेंगे, तो इतना याद नहीं रहता है मुझे। फाइंड nth डेरिवेटिव, जनरल भी इसको कहते हैं, जनरल डेरिवेटिव, या जनरल भी कहेंगे, nth डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ ax प्लस b। ax प्लस b का nth डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, कहीं होगा आपको log ऑफ 3x प्लस 4 और log ऑफ 3 माइनस 5x, उसका nth डेरिवेटिव कैसे हम लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। यू सी वी राइट लेट y be equal to log of ax plus b। We write here, we go on differentiating, differentiate with respect to x, differentiate with respect to x, it is y1 means dy by dx। क्या आएगा ये, log of the function का क्या डेरिवेटिव है, what is the derivative of log of function, याद है कि मैं ही बताऊं, yes, log of fx 1 by fx, 1 by the function, फिर न्यूमरेटर में लिखना है फंक्शन का डेरिवेटिव, दैट इज f डैश x। सो log of fx का डेरिवेटिव 1 by the function ax प्लस b, व्हाट इज योर फंक्शन ax प्लस b, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, a, बिकॉज b इज एडिटिव कांस्टेंट, डिसअपियर इन डिफरेंशिएशन, multiple constant survives in the differentiation, x का derivative 1, so it is a into 1, that is it is a, so I can write it, it is ax plus b raised power -1, इसको ऊपर मैंने लिया, a यहाँ पर लिखेंगे a1। अब मैं दोबारा इसको डिफरेंशिएट करूँगा, y2 क्या आएगा, y2 -1 आएगा नीचे, ओके, ये आएगा ax plus b raised power -2, इंटरनल डेरिवेटिव ए स्क्वायर। अब आए y3 पे, इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव -1, यह आएगा -2, यह आएगा ax प्लस b रेज पावर -3, इट इज़ a3। अब यहाँ y4 फोर्थ डेरिवेटिव, इट इज़ -1, -2, -3, ये -3 नीचे, देन इट इज़ ax प्लस b रेज पावर -4, a4। ज़रा अब सिमेट्री देखेंगे डेरिवेटिव नंबर के हिसाब से, डेरिवेटिव नंबर मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3, लेकिन यहाँ पे आता है मुझे 1 into 2, व्हाट इज़ 1 into 2, 1 into 2 मीन्स 2 फैक्टोरियल, इट इज़ 2 फैक्टोरियल, बट आई नीड हियर डेरिवेटिव नंबर, आप चाहते हैं 3 इन्वॉल्व होना चाहिए, ये 2 फैक्टोरियल जो है, मैं 2 फैक्टोरियल को लिखूँगा 3 - 1, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे माइनस कितने बार है मुझे, 1 माइनस बार प्रोडक्ट में 2 बार, लेकिन डेरिवेटिव क्या है 3। देखो मैं लिखूँगा यहाँ पे, मैं बताता हूँ क्या आता है, ये मुझे एक्चुअली आएगा यहाँ पे -1 2 बार, -1 रेज पावर 2 फैक्टोरियल, ये तो ओके है, x प्लस b का पावर डेरिवेटिव नंबर ही है -3, a का पावर डेरिवेटिव नंबर ही है a3। अब मैं क्या करूँ, इसको
कैसे इसको कन्वर्ट करूँगा डेरिवेटिव नंबर में, आप देखिए क्या करूँ मैं, ये मैं लिखूँगा यहाँ पे -1 रेज पावर 3 - 1, तो 3 - 1 तो एक ही बात है, 2 है ना। क्यों किया ऐसा, क्योंकि डेरिवेटिव है यहाँ पे थर्ड। ओके, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है, क्योंकि मेरे पास क्या पे यहाँ पे डेरिवेटिव है 3, आई विल राइट दिस 2 फैक्टोरियल एज 3 - 1 factorial. Why 3? Because derivative is 3. It is okay here. यहाँ पे मैं लिखता हूँ ax plus b raised power -3 a raised power 3 मीन्स इस हिसाब से मैं इसको भी अब लिखूँगा, कितने माइनसेस है प्रोडक्ट में, 3, डेरिवेटिव 4, इसको मैं लिखूँगा -1 raised power 4 - 1. ओके, 1 into 2 into 3 means 3 factorial, but derivative 4, I will write it 4 - 1 factorial. This is ax plus b raised power -4 a raised to power 4. ओके, नाउ इस हिसाब से आप लिख सकते हैं, इस हिसाब से इसका y5 फिफ्थ डेरिवेटिव क्या आएगा इस हिसाब से, शाबाश, -1 रेज पावर 5 - 1, देन 5 - 1 फैक्टोरियल, then ax plus b raised power -5 a raised power 5. गोया कि अगर मैं इसको प्रोसीड करूँगा अब nth डेरिवेटिव तक, प्रोसीडिंग अप टू nth डेरिवेटिव, यहाँ मैं आता हूँ, यहाँ प्रोसीडिंग अप टू जनरल या nth डेरिवेटिव, जब हम nth डेरिवेटिव पे पहुंचेंगे क्या लिखूं मैं, yn ऑफ दिस फंक्शन इज log ऑफ ax प्लस b, इसका nth डेरिवेटिव क्या आएगा, शाबाश शाबाश, -1 रेज पावर n - 1. ओके, क्योंकि 5 के वक्त 5 - 1, n के वक्त n - 1, यहाँ क्या आएगा n - 1 फैक्टोरियल, यहाँ क्या हमें मिला ax प्लस b रेज पावर -n इंटू a रेज पावर n. अब याद रखने का ढंग क्या होगा, nth डेरिवेटिव ऑफ दिस log ऑफ ax प्लस b इज इक्वल टू yn इज -1 रेज पावर n - 1 फैक्टोरियल, देन a रेज पावर n, ये मैं नीचे लाता हूँ, दिस इज योर ax प्लस b रेज टू पावर n. दिस इज़ द nth डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. लेकिन ये आप याद रखेंगे, ये चीज़ आप याद रखेंगे, जब हमारे पास log ऑफ x प्लस b है, सो nth डेरिवेटिव है -1 रेज पावर n. जब हम एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन में थोड़ा आपको दोबारा इनका एप्लीकेशन हम करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट nth डेरिवेटिव ऑफ दिस log ऑफ 3x प्लस 4, log ऑफ ax माइनस b, सो ऑन. तो ये आप याद रखेंगे, -1 रेज पावर. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है, मान लीजिए मेरे पास अगर यहाँ पे है, कभी आएगा मुझे इस तरह, इफ y इज log ऑफ 4 - 3x, और भाई ऐसा भी क्वेश्चन आएगा ना, मैं क्या लिखूँ इसका, आई विल राइट इट, इट इज़ log ऑफ -3, दिस इज माई a, -3 x प्लस b 4. माई a इज -3, माई b इज 4. जब मैं इसका इस हिसाब से लिखूँगा nth डेरिवेटिव क्या आएगा, शाबाश, व्हाट इज़ yn डायरेक्ट, यह आएगा -1 रेज पावर n - 1, देन n - 1 फैक्टोरियल. हाँ, यहाँ पे a क्या था आपको, कोफिशिएंट ऑफ x था a, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, माइनस, आई विल राइट a के बदले -3 रेज पावर n. ये मैं लिखूँगा, फिर नीचे 4 - 3x रेज पावर n. इसमें एक सेटअप भी आप देख सकते हैं, दिस यू कैन राइट -1 रेज पावर n - 1 फैक्टोरियल. यहाँ लिखेंगे दोबारा -1 रेज पावर n इंटू 3 रेज टू पावर n, इस तरह भी ले सकते हैं, बाई 4 - 3x रेज पावर n. अब ये और ये हम जुड़ सकते हैं, ये और ये हम जुड़ सकते, बेसिस सेम पावर ऐड, क्या आएगा ये यहाँ पे आपको आएगा -1 रेज पावर -n - 1 प्लस n, ठीक है ना, इसका पावर है -1 रेज पावर n. यहाँ पे जो आया -1 रेज पावर n, ये आएगा n प्लस a आएगा 2n - 1, 2n - 1,
n minus 1 factorial. This is 3 raised power n by 4 minus 3x raised power n. This is how you find out the nth derivative of logarithm functions. I think you are following me. We have to take later on, we have to take the application part. Application part में आपको ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा. क्या क्या किया अभी तक हमने? nth derivative of what? x plus b raised power m, x raised power m, 1 upon ax plus b log of ax plus b या a माइनस बी एक्स वट एवर इट इज़. अब आप कोई भी लिख सकते हैं इस हिसाब से. चलो अब हम जाएंगे स्टैंडर्ड रिजल्ट पे. फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल जाएंगे. a रेज टू पावर mx पे जाएंगे. चलो a रेज पावर mx पे nth डेरिवेटिव बहुत आसान है. ठीक है, आप लिखेंगे लेट y बी इक्वल टू a रेज टू पावर mx. एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे आता है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. विद रिस्पेक्ट यू विल राइट y1 फर्स्ट डेरिवेटिव. एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज a रेज पावर mx. डिफरेंशिएशन ऑफ पावर विद रिस्पेक्ट टू x. एक्सपोनेंट क्या है वो? mx का डिफरेंशिएशन m. Then it is log of base to the e, log of a to the base e. e तो हम मेंशन नहीं करता है because in differentiation every log we take with base e. It is understood. So this is a raised to power mx. Then m times log a. It is understood it is base is e. When we go for second derivative, what is y2? What is y2? You look, this will be a raised power mx as it is exponential. Differentiation of power again m, this will become m square. Then derivative of this again log a, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी प्रोडक्ट में log a है. ये क्या होगा आपका? log a का स्क्वायर. So this is a raised to power mx m square log of a का स्क्वायर. दो ही सेटअप पे आपको पता चला कि इसका nth क्या होगा. मतलब y3 क्या होगा? अब हम इस तरह जाएंगे. y3 will be a raised power mx. This is m3 m cube log a raised power 3. So proceeding up to nth derivative. Proceeding up to nth derivative. What is your ym? yn. yn अगर हम निकालेंगे. This is a raised power mx as it is. Be cautious. m raised to power n आएगा यहाँ पे जो डेरिवेटिव नंबर है. log a रेज पावर n. ये इसका nth डेरिवेटिव है. जब हम निकालते हैं, याद रखिए इसको, इसका ये nth डेरिवेटिव बना a रेज पावर mx m रेज पावर n log ऑफ a रेज टू पावर n है यहाँ पे nth डेरिवेटिव. इसी हिसाब से अगर हमें होगा अगर यहाँ पे कभी आपको मिलेगा से e रेज टू पावर mx रखेंगे. व्हाट इज़ y1? y रखेंगे इसके बराबर y1 e रेज पावर mx एज इट इज़. डिफरेंशिएशन ऑफ पावर m log ऑफ बेस log e टू द बेस e 1 हुआ. दैट इज़ इट इज़ m इंटू e रेज पावर mx. जब हम सेकंड डेरिवेटिव पे जाएंगे y2 दोबारा e रेज पावर mx डिफरेंस पावर m, लेकिन ये बन आएगा दोबारा. दिस इज़ e रेज टू पावर mx इंटू m स्क्वायर. दिस इज़ m स्क्वायर e रेज पावर mx. जब हम y3 पे जाएंगे इट इज़ m रेज पावर क्यूब e रेज पावर mx. जब हम जाएंगे यहाँ पे yn पे nth डेरिवेटिव पे जो जाएंगे, व्हाट इज़ nth डेरिवेटिव? दिस विल बी m रेज टू पावर n e raised to power mx. Remember this. So these are some standard results. Now we shall take another standard set. याद रखना है इसको ज़रूरी. ठीक है, जो सेकंड इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा वहाँ पे हम क्या करेंगे? हम करेंगे अब इसका एप्लीकेशन पार्ट. एप्लीकेशन पार्ट पे हम जाएंगे, लेकिन ये फॉर्मूले याद रख के. चलिए देखिए अब फाइंड nth derivative of
साइन ए एक्स प्लस बी एंड कॉस ए एक्स प्लस बी। बताइए कौन सा मैं दिखाऊँ? पहला वाला आप करेंगे हैं, इस हिसाब से इसको कीजिए, डू इट। चलो ये मैं यहाँ पे करता हूँ, देखो कैसे मैं जाऊँ। आई विल राइट लेट वाई बी इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी। क्लियर? जब मैं इसका पहला डेरिवेटिव निकालता हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इट इज़ y1। कॉस का आएगा माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, इसमें एंगल में है, इसको ए एक्स प्लस बी, उसका डेरिवेटिव एज यूजुअल ए। फिर मैं जाता हूँ y2 में, साइन का कॉस, इट इज़ माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी का ए आएगा ए स्क्वायर, y3 का आएगा कॉस का माइनस साइन, इट इज़ साइन ए एक्स प्लस बी ए क्यूब, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव। हाँ देखो यहाँ पे अब कहीं आता है माइनस साइन, कभी आता है कॉस, कभी आता है साइन, लेकिन याद रखिएगा जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन या कॉस का nth डेरिवेटिव निकालेंगे, कोशिश कीजिए ये रिज़ल्ट आप एक्सप्रेस करना साइन में ही या कॉस में ही, जिसमें फंक्शन है। मेरे पास फंक्शन क्या है? कॉस, यहाँ मुझे आता है माइनस साइन। मैं इसको लिख सकता हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट सेटअप। आई विल राइट इट नाउ, दिस वन इस आई विल राइट इट, it is cos of pi by 2 plus ax plus b into a bar। आपको याद है ना, sin and cos changes, it gets changed into addition of cos, omission of cos when you have odd multiple of pi by 2। यहाँ पे है odd multiple of pi by 2, 1 into pi by 2। ये देखना आपको cos of 90 प्लस थीटा, ये आपको 12th क्लास में 11th में भी किया आपने, बार बार ये किया। 90 प्लस थीटा किस में जाता है? इसमें जाता है ना, इसमें cos क्या आता है? नेगेटिव, ऐड शुगर टू कॉफ़ी उसी तरह करते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव क्या क्या है? साइन एंड कोसेक है इसमें पॉजिटिव, लेकिन ये कॉस का मामला है, कॉस 90 प्लस थीटा इसमें लाई करता है ना, लेकिन इसमें कॉस क्या आएगा? नेगेटिव, वो है आपका नेगेटिव इधर। लेकिन कॉस का वैल्यू कॉस ही नहीं आता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ये चेंज होता है इनटू कोस, एडिशन ऑफ कोस, ओमिशन ऑफ कोस। आपका यहाँ पे कॉस है, कोसाइन, दिस मीन्स कोसाइन, यहाँ ऑलरेडी को है, कॉटो को, फिर क्या मिलेगा आपको? साइन, यानी कि कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, या कॉस ऑफ पाई बाई 2 कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, यहाँ पे जाता है। ये पहला देखना है हमें कॉस क्या यहाँ पे है? नेगेटिव, लगाया आगे नेगेटिव। क्या कॉस को हम कॉस ही लिखेंगे? नहीं, इट इज़ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई, इट इज़ माइनस साइन थीटा। अगर हम जाएंगे हम साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये इसमें लाई करता है, इसमें साइन पॉजिटिव है, लेकिन साइन तो साइन ये नहीं आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ये आएगा कॉस थीटा। ये देखना, ये आपने किया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, तो ये मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, है ना। अब ये सेकंड स्टेप जो है यहाँ पे है माइनस कॉस, इसको भी मुझे लिखना कॉस है। आई विल राइट इट कॉस ऑफ 2 पाई बाई 2, अगेन दिस ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ क्या हुआ? ये यहाँ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं हुआ है, ये स्टेप है। ये 2 कैंसिल होगा ना, cos pi, it is actually what? It is your cos of pi plus theta, cos of pi plus theta, theta is your ax plus b, cos of pi plus, हम देखेंगे कहाँ जाता है pi plus theta, यहाँ से यहाँ तक क्या है आपको? pi plus theta इसमें जाता है, थर्ड में जाता है। वहाँ cos क्या है? नेगेटिव, इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है? tan एंड cot, ये आएगा वहाँ पे नेगेटिव, यानी कि आगे आएगा इसको माइनस जब हमको इवेल्यूएट करेंगे। लेकिन इसका तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं है, ये कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा है, इसका चेंज ऑफ को फंक्शन नहीं है, ये आएगा माइनस कॉस थीटा ही। गोया कि माइनस कॉस थीटा मैं लिखूंगा कॉस ऑफ 2 पाई बाई 2 प्लस दिस। अब आप यहाँ पूछ सकते हैं आपने क्यों किया ये? क्योंकि यहाँ पे मैं सिमेट्री लाना चाहता हूँ, 1 इंटू पाई बाई 2 देन 2 इंटू पाई बाई 2। अब आए यहाँ पे, यहाँ साइन है, मैं इसको भी कॉस में लिखना चाहता हूँ, इट इज़ कॉस ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। हाँ, यहाँ पे आया ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, आया ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। और में पहले देखना है और 3 पाई बाई 2 बाई 3, ये है 270, ये कहाँ जाएगा? ये इसमें जाता है, 3 पाई बाई 2, 3 इंटू 90, है ना,
270, यहाँ पे 360 है, यहाँ पे है 270 प्लस थीटा। अगर माइनस होता है इसमें प्लस थीटा जाता है इसमें, तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है, एड शुगर कॉस एंड सेक होता है इसमें पॉजिटिव, सो ये पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन कॉस नहीं, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ये आएगा साइन, सो पॉजिटिव साइन। ओके, सो दिस इज दिस। सो इस हिसाब से आपको सिमेट्री मिल रही है। जब मैं यहाँ पे y4 पे जाऊँगा, व्हाट इज़ दैट, साइन का कॉस ax प्लस बी, देन दिस इज a4 इंटरनल डेरिवेटिव, ये मैं क्या लिखूँ, इट इज़ कॉस ऑफ 4 टाइम्स पाई बाई 2 प्लस ax प्लस बी इंटू ए रेज पावर 4। यहाँ क्या 2 कैंसर, कॉस 2 पाई प्लस थीटा मीन्स कॉस 360 प्लस थीटा किस में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इस तरह जब आप लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ आप 2 पाई प्लस थीटा, इसमें ऑल पॉजिटिव, नो चेंज बिकॉज इट इज़ 2 पाई, सो कॉस 2 पाई प्लस थीटा इज अगेन कॉस थीटा, इट इज़ दिस। सिमेट्री तो डेवलप हो गई ना। सो अब आप क्या कहेंगे इस हिसाब से, सो प्रोसीडिंग अप टू nth डेरिवेटिव, proceeding up to nth derivative, you will write yn. What is my yn? It will be cos of n times pi by 2 plus ax plus b into a raised power n. आया समझ? अब हम क्या याद रखेंगे, दस when my u, मान लीजिए u में नाम रखता हूँ, my u is cos ax plus b, what is my un, nth derivative, it will be ax plus b का nth derivative a raised power n, cos तो cos ही आएगा यहाँ पे, cos n times pi by 2 n pi by 2 plus ax plus b, याद रखिए। सिमिलरली वो आप करेंगे, बहुत आसानी से आपको मिलेगा। सिमिलरली इफ़ यू टेक v, इफ़ यूर v इज साइन ax प्लस b, सिमिलर लाइन्स पे जाइए, साइन ax प्लस b, यस, व्हाट विल बी योर vn, nth डेरिवेटिव, एक्स प्लस बी का nth डेरिवेटिव ए रेज पावर n, साइन तो साइन ही आएगा, जिस तरह कॉस में कॉस ही आया, दिस इज साइन ऑफ n पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b, यह है इसका nth डेरिवेटिव, यह है इसका nth डेरिवेटिव। याद रखिएगा when we have cos of ax प्लस b या सिंपली cos of ax, अगर ax है उस वक्त है a रेज पावर n cos of n पाई बाई 2 प्लस ax, अगर यहाँ पे साइन ऑफ bx है देन इट इज़ vn इज b रेज पावर n साइन ऑफ n पाई बाई 2 प्लस bx। ठीक है, आप आज आपने इम्पॉर्टेंट किया है nth डेरिवेटिव ऑफ कॉस साइन लॉग ऑफ एक्स प्लस बी रेज पावर m 1 अपॉन एक्स प्लस बी, स्टैंडर्ड वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है। अब हम करेंगे नेक्स्ट टाइम, अगर हमारे पास होगा ये फंक्शन, इसका हम करेंगे। अगर मेरे पास कहीं है, ये आम तौर पे फ्रिक्वेंटली हमें ये फंक्शन मिलता है, y इज़ ई रेज पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स या बी एक्स प्लस सी। इसी तरह हमारे पास अगर y है ई रेज पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी, इनका nth डेरिवेटिव कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये है स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। लेकिन आपको क्या करना है, आप ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की जो रिजल्ट्स है, nth डेरिवेटिव है, फाइनल चीज़ जो हमने किया है, तो उनको याद रखना है आपको। और आगे हम जा रहे हैं लेबनीज़ थ्योरम पे। लेबनीज़ थ्योरम में मैं आपको बताऊंगा कैसे इसका एप्लीकेशन है। थैंक यू वेरी मच, वी विल बी सीइंग यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन यू रिवाइज, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।